Hi everyone, and so let's begin with the first chapter of 12th Standard Secretarial Practice. So basically, this entire subject contains 12 chapters, and I will be trying to give you some short notes on every chapter so that you can revise the entire content in a very less period of time and with a quality content. So without wasting our time, let's begin with the very first chapter, and the name of your first chapter is Introduction to Corporate Finance. Introduction to Corporate Finance. Now, if I try to, divide this particular chapter, let's see what are the different areas of this chapter. So the very first topic in this chapter is meaning and definition. That is very basic in every chapter. So first is what is the meaning and definition of corporate finance. Then you come to a second question in this chapter. That is what is the basis of corporate finance? What is the basis of corporate finance? So this is divided into two parts. Precising the thing, there are two decisions which are the basis of corporate finance. So the very first is financing decision. Financing decision, and the another one is investing decision. Okay. So what is the basis of corporate finance? There are two decisions, that is financing decision and investing decision. After this, you come to the next topic in this chapter, and that is importance of corporate finance. So for corporate finance, I'll be writing C here onwards. So the next topic in this chapter is importance of corporate finance. Then you come to the next topic in this chapter, that is capital requirement. Okay. So again, this is divided into two parts. So there are two types of capital. One is fixed capital, and the another one is working capital. Now, what has been asked in this fixed capital and working capital? So again, you need to explain what is fixed capital. And the question which comes here is factors affecting fixed capital. Same question comes here, factors affecting working capital. Okay. So two questions in capital requirement: factors affecting fixed capital, factors affecting working capital. And ये दोनों में fixed capital and working capital you have a distinguish. And now there comes the last part of this chapter, that is capital structure. Capital structure में दो बातें पूछी आपसे. The very first thing is define what is capital structure, and the next part in this is what are the components of capital structure. So this is the entire scenario of your first chapter of SP 12th standard. So what is the chapter's name? Introduction to Corporate Finance. कितने पार्ट में डिवाइड किया चैप्टर को? तो 5 पार्ट में डिवाइड किया. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि बहुत ही इजी चिन्ह टॉपिक. देन कम्स द सेकंड पार्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. देख भाई साहब, पहले क्या पूछा? व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. फिर पूछ रहे what is the basis of corporate finance. So there are two decisions defining the basis of corporate finance. What are they? The first one is financing decision and the another one is investing decision. Then you come to the third part of this chapter, that is importance of corporate finance. So तीन पहला question is basically finance for corporate finance, corporate finance, corporate finance. Then comes the fourth part, which says what is capital requirement.
तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल एंड द अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल। ये दोनों में क्या क्वेश्चन है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और ये दोनों का डिस्टिंग्विश कि भाई फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क है। So this is the scenario for capital requirement. And then comes the last part of this chapter, that is what is capital structure. तो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में दो बातें पूछी, पहले तो तुम ये डिफाइन कर दो, हमको बता दो, समझा दो कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन कम्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि व्हाट ऑल थिंग्स यू इंक्लूड, तो क्या बन जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। आई होप यहां तक एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर। Okay, so now let's come to the very first part, what we have broken up this chapter into. The very first part is meaning and definition. So let's understand the meaning and definition of corporate finance. Meaning and definition of corporate finance. ठीक है ना भाई साहब, सबसे पहला मीनिंग समझ लेते क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस। See, it basically deals with two things. Corporate finance deals with how many things? Two things. सबसे पहला raising and second is using. पहले रेज करना, उसके बाद में यूज करना, मतलब पहले लाना और फिर उसका इस्तेमाल करना। किस चीज का? इट डील्स विथ रेजिंग एंड यूजिंग। किस चीज का रे भाई साहब? ऑफ व्हाट? किस चीज का? ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस का मतलब पैसा। फॉर हुम, किसके लिए? किसके लिए पैसा लाना और इस्तेमाल करना? फॉर हुम? फॉर ऑर्गेनाइजेशन और बाय ऑर्गेनाइजेशन। फॉर के जगह पे बोल दो बाय हुम, तो फिर बाय ऑर्गेनाइजेशन और बाय कॉर्पोरेशन। सो द थिंग इज, corporate finance deals with raising and utilizing what? Finance by the corporation। मतलब क्या? कोई बिजनेस, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन का मतलब क्या? कोई बिजनेस जिसने क्या किया? पैसा लाया, उसको यूज किया फॉर इट्स ओन बिजनेस या फिर फॉर कॉर्पोरेशन। समझा? पैसा लाना और उसको बिजनेस में इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो मीनिंग में अपन क्या लिखेंगे अगर लिखना पड़ा, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ रेजिंग एंड यूजिंग व्हाट? फाइनेंस फॉर द और बाय द कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया मीनिंग? उसके बाद में डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दिया? हेनरी हॉगलैंड। नाम याद कर लो। हेनरी हॉगलैंड ने डेफिनेशन दिया। बहुत इजी डेफिनेशन, इफ यू नो द मीनिंग यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन। ये हेनरी हॉगलैंड क्या बोलता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस सीएफ मेरे लिए, प्राइमरीली डील्स विथ, प्राइमरीली डील्स विथ कितनी बातें? वही दो बातें, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग। पर यहाँ पे उसने क्या किया? रेजिंग के लिए वर्ड क्या यूज किया इन्होंने? फॉर एक्विजिशन। प्राइमरीली डील्स विथ एक्विजिशन एंड यूज। यहाँ पे क्या था? रेजिंग एंड यूजिंग। रेजिंग के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हेनरी ऑगलैंड ने? एक्विजिशन। यूजिंग के लिए यूज वर्ड यूज किया। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी ऑगलैंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरीली डील्स विथ एक्विजिशन एंड यूज किसका? कैपिटल का। कैपिटल का मतलब पैसों का। एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। ये हो गया तुम्हारा मीनिंग
and definition. What is meaning? Corporate finance deals with raising and using of finance by the corporation. What is definition? According to Henry Ogland, corporate finance primarily deals with, यहाँ पे raising की जगह क्या बोलने का? Acquisition. According to Henry Ogland, corporate finance primarily deals with acquisition and use. किसका? पैसों का, मतलब and use of capital. किससे? किसने किया? By business corporation. मतलब बिजनेस कॉरपोरेशन ने जो पैसा लाया और वो पैसे को जो बिजनेस में यूज किया उसको बोलते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस. आई होप मीनिंग एंड डेफिनेशन इज वेरी 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 क्लियर. सो पहला पार्ट समझ में आया. सेकंड पार्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस? व्हाट इज द basis of corporate finance? Oh, understand one thing. Once this 5 topics of this chapter are done, ना पूरा का पूरा textbook में जितना content है complete हो जाएगा. So when you approach your exercise part of your textbook, each and every answer आपको आना चाहिए because everything is covered over here. So we not do question answer, वैसा नहीं करना है. What we have to do, we have to complete the entire content of the chapter. Once everything is in our mind, we can answer any question asked to us. फिर चाहे वो ये पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम लोग को आंसर आना चाहिए. So the second part of the chapter is what is the basis of corporate finance. So what is the basis of corporate finance? में we say there are two decisions that are the basis of corporate finance. Two decisions are basis of corporate finance. Okay, what two decisions? सबसे पहला क्या था रे? पैसा लाओ लाओ लाओ. पहला क्या था? पैसा लाओ, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन. बराबर है. एक बार पैसा आ गया फिर उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे. कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे ना, कि पैसे को बस तिजोरी में रख के देखते रहेंगे? नहीं. सो वंस मनी इज कम यू हैव टू इन्वेस्ट इट. तो पहला डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग. पैसा लाओ. मतलब अपन ने देखा था कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो बातें होती है, रेज प्लस यूज. तो ये कौन सा स्टेप है फाइनेंसिंग डिसीजन वाला? रेज. अकॉर्डिंग टू हेनरी ऑगलैंड रेस के लिए क्या वर्ड यूज करना था? एक्विजिशन. याद आ रहा है? ओके. और सेकंड क्या था तुम्हारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का? सेकंड टर्म एक था उसमें यूज. तो इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या? यूज करना. समझ में आ रहा है? कैन यू लिंक इट? ओके. सो नाउ लेट्स कम ओवर हियर. फाइनेंसिंग डिसीजन सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक नीड होती है. किसकी नीड होती है? फाइनेंस की, पैसों की. सबसे पहले लिखेंगे एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइनेंशियल नीड. हर ऑर्गेनाइजेशन को एक नीड होती है. कौन सी नीड होती है? फाइनेंस की, फाइनेंशियल, पैसों की नीड होती है. इट कैन सेटिस्फाई दिस नीड. देखो, कोई भी चीज अगर अपने को फुलफिल करनी तो कहीं ना कहीं उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, तुमको कंप्यूटर खरीदना है. यू विल गो टू सम डिजिटल शॉप जहाँ पे डिजिटल आइटम्स मिलता है सब कुछ. सो एज पर रिक्वायरमेंट यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर मार्केट. इसकी नीड कौन सी है? फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल की नीड है, पैसों की नीड है. तो ये कौन से मार्केट में जाएगा? इट विल गो टू कैपिटल मार्केट. इट कैन फुलफिल इट्स नीड फ्रॉम कैपिटल मार्केट. तो ये जो फाइनेंशियल नीड है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फाइनेंशियल नीड. इट कैन फुलफिल इट्स नीड फ्रॉम, एक बाजार में जाना पड़ेगा, वहां से पैसा लाना पड़ेगा. वो बाजार को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट. हर धंधे को पैसे की जरूरत होती है और ये पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल मार्केट में जाएगा. पर अगर मैं मोबाइल खरीदने वाले शॉप पे जाऊँ तो इतनी वैरायटी है. ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, वन प्लस है, एप्पल है. एप्पल में और बहुत सारी वैरायटीज है. तो बोलने का मतलब देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज इन मार्केट. सेम वे में
ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल चॉइस फॉर फाइनेंस इन कैपिटल मार्केट। मल्टीपल चॉइस को कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं बताता हूँ, ये मैं बाद में लिखता हूँ। This multiple choices can be in two parts. It can be इक्विटी वाला कैपिटल और इट कैन बी डेट वाला कैपिटल। इक्विटी में क्या क्या आ सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट में क्या क्या आ सकता है? बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, राइट। सो वंस अगेन व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि भाई मेरे को पैसा लाना है, मेरे को पैसा क्या करना है? रेज करना है, मेरे को पैसा क्या करना है? अक्वायर करना है। तो अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फाइनेंशियल नीड। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की को पैसे की जरूरत होती है। ये नीड वो कहां से फुलफिल कर सकता है? तो कैपिटल मार्केट से फुलफिल कर सकता है। पर कैपिटल मार्केट में ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या है? बहुत सारे मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में दो बेसिक कैटेगरी क्या है? इक्विटी कैपिटल नहीं तो फिर डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट कैपिटल में क्या आ सकता है? बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। तो ऐसे टाइम पे जब इतना सारा मल्टीपल चॉइस है तो वो जो फाइनेंस मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, ही हैज टू टेक अ डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक अ डिसीजन। किस बात का? टू ensure proper combination किसका? of equity and debt capital। समझ में? 4 points, you are done with financing decision। what is financing decision? हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की नीड होती है, फाइनेंशियल नीड होती है। ये नीड वो कहां से फुलफिल कर सकता है? कैपिटल मार्केट से फुलफिल कर सकता है। ओके, कैपिटल मार्केट में क्या? बहुत सारे वैरायटी ऑफ चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस है। उसमें दो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? इक्विटी कैपिटल या फिर डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट में यू हैव गॉट मेनी ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। So what finance manager has to do is finance manager has to make a decision in order to ensure कि भाई वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन करे। क्या करे? प्रॉपर कॉम्बिनेशन मेंटेन करे। किसका? इक्विटी का और डेट कैपिटल का। समझ में आ गया व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? अब ये डिसीजन से क्या हुआ? वो पैसा लेके तो आ गया, इक्विटी का भी थोड़ा बहुत पैसा लेके आया, थोड़ा बहुत डेट कैपिटल से भी पैसा तो बिजनेस में लेके आ गया। तो रेज वाला काम हो गया। अब काम कौन सा करना है? यूज करने का। यूज करने के काम को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन। यूज करने वाले काम को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, so what all you'll write in investment decision? Once the capital is raised in financing decision, the finance manager has to take decision to use it। ठीक है? एक बार जो पैसा तुमने रेज कर लिया फाइनेंसिंग डिसीजन में, तो तुमको अगला डिसीजन, ये फाइनेंस मैनेजर को अगला डिसीजन क्या लेना है कि भाई मैं इसको यूज कैसे करूंगा। बट एक चीज ध्यान में रखना, कैसा यूज करना चाहिए। Funds should be used in such a manner that owners get
मैक्सिमम रिटर्न, कि भाई तू ये पैसे को ऐसा यूज करना कि जो कंपनी के ओनर्स है उनको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले। पर ये चीज समझने के लिए कि भाई रिटर्न मैक्सिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टू कंसिडर दिस, टू अंडरस्टैंड दिस, टू कंपेयर दिस, टू अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कोई भी चीज को लाने का कॉस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल को लाने का कॉस्ट। मैंने इक्विटी से कुछ पैसा लाया होगा, मैंने बैंक लोन से कुछ पैसा लाया होगा, मैंने डिबेंचर से कुछ पैसा लाया होगा। इक्विटी वालों को मान के चलो मेरे को डिविडेंड देना पड़ता है साल का 8%। बैंक लोन मैंने लाया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डिवेंचर भी मेरे क्या है 8% इंटरेस्ट रेट से, ये हाइपोथेटिकल है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने जो भी कैपिटल लाया है सब में मेरे को मिनिमम कितना रिटर्न देना है। यहाँ पे फिक्स्ड होता है, ये मिनिमम होता है। तो मेरे को कितना रिटर्न देना है, 8% का रिटर्न देना है ये इन्वेस्टर्स लोगों को। इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो पैसा मैंने इन लोगों से लाया, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे एग्जाम्पल में कितना हुआ, 8%। अब मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम रिटर्न कब हो रहा है, मैक्सिमम रिटर्न कब हो रहा है? सो फाइनेंस मैनेजर शुड मेक श्योर कि बिजनेस का रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो पैसा आया, ये मैंने बिजनेस में लगाया और वहां पे प्रॉफिट हुआ 15% का कंपनी को। कंपनी ने जो कैपिटल लाया तो उसमें कॉस्ट कितना आ रहा था, 8%। सो कंपनी इज गेनिंग ऑन हाउ मच परसेंट, 7%। तो मतलब ये धंधा सही चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है। सो एग्जाम वाइज व्हाट यू नीड टू राइट इज, what is investment decision? Once the capital is raised in financing decision, the decision finance manager has to take a decision to use it। एक बार पैसा आ गया, रेज हो गया, उसके बाद में उसको क्या करो, यूज करो। अच्छा, यूज कैसे करना? इट शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर दैट ओनर्स गेट मैक्सिमम return। It should be used in such a manner that owners get maximum return। अच्छा, to understand whether the owner is getting maximum return or not, we need to understand the concept of cost of capital। And finance manager should employ or should invest funds in such a manner that return is greater than cost of capital। This is your investment decision। So meaning and definition is done। फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। व्हाट इज मीनिंग? मीनिंग इज कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंस। बाय whom? कॉर्पोरेशन। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या भाई, बिजनेस पैसा लाया और उसको यूज किया, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। डेफिनेशन हेनरी हॉगलैंड की भाषा में बोलते हैं रेजिंग और यूजिंग ही होता है, पर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रेजिंग के लिए यूज द वर्ड एक्विजिशन, यूजिंग के लिए यूज। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी ऑगलैंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरीली डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। ये हो गया आपका डेफिनेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर कम्स इज डिसीजंस। What are the basis of corporate finance? So there are two decisions that are the basis of corporate finance। What are the two decisions? Investment, sorry, financing decision and investment decision। What is financing decision? कि भाई every business needs finance, every business has a financial needs, it can fulfill this financial needs from the capital market। Capital market has got multiple choices to raise the finance। The main two categories are equity capital and debt capital। In equity capital, equity share capital, preference share capital are the examples। In debt capital, bank loan, debentures, bonds, etc. are the examples। तो फिर फाइनेंस मैनेजर को क्या करना है, फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक अ डिसीजन so as to ensure कि देर इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट कैपिटल। ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब उसने क्या करा, पैसा रेस कर लिया, पैसा लेके आ गया, अब ये पैसे को क्या करना है, यूज करना है। तो नेक्स्ट डिसीजन आता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? कि वंस द कैपिटल इज रेज्ड इन फाइनेंसिंग डिसीजन, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक द डिसीजन टू यूज इट। अच्छा, कैसे यूज करना रहे?
It should be used in such a manner कि owners get maximum return. अच्छा, maximum return मिला नहीं मिला ये कैसे समझेगा? तो so for that you need to understand the concept of cost of capital. And फिर finance manager should invest money or invest the funds raised in financing decision in such a manner that return is greater than cost of capital. समझे सब लोग? That's it for this session. I hope you understood it and you can remember it there and then. The next topics: importance of corporate finance, capital requirement, and capital structure, I will be covering in the next video. So thank you so much. And yes, definitely, if you like it and if you want to understand any other concept, do give it down in the comment section below and like the video and share with your friends as much as possible. Thank you so much.